Hello students, today we will study next topic of chapter 3, Kirchhoff's law. Okay, Kirchhoff's law. There are two laws. First, Kirchhoff's first law and second, Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law is also called Kirchhoff's current law or KCL. It is also called node theorem, node theorem or junction theorem, junction theorem, junction theorem, because it is only for junction or node, and it is related to electric current, so it is called Kirchhoff's current law. According to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of the currents meeting at a junction in a closed electric circuit is 0. Meeting at a junction in a closed electric circuit is 0. What do you mean by junction? Junction is a point in a electrical network where two or more कंडक्टर्स मीट. ओके, तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वायर मिलते हैं, कंडक्टर्स मिलते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन या फिर नोड कह देते हैं. वी कैन राइट Kirchhoff's current law in mathematical way as sum of current leaving the junction plus current entering the junction is equal to 0. Okay, that means summation I is equal to 0. Now we study sign convention for KCL. There are two sign convention. First, the incoming currents towards the junction are taken as positive, means जो junction की तरफ आ रहे होंगे currents उनको positive consider करेंगे, and the outgoing currents away from the junction are taken as negative, means जो दूर जा रहे होंगे junction से उनको negative consider करेंगे. Let's see one example of KCL. This is any junction. This is any junction point. There are several currents I1, I2, I3, I4, I5. Some of them leaving the junction and some of them entering the junction. Now by using KCL, Kirchhoff's current law, we can write I2 plus I4 minus I1 minus I3 minus I5 is equal to 0. I2 and I4 taken as positive because these currents entering the junction, and I1, I3, I5 taken as negative because these currents leave the junction. Kirchhoff's current law supports law of conservation of charge. We know current I is equal to rate of flow of charge, that means delta Q by delta T. At a junction I is 0, so 0 is equal to delta Q by delta T. That means delta Q is also 0 at a junction. Okay, तो इस वजह से Kirchhoff's current law supports law of conservation of charge. According to law of conservation of charge, the charges cannot accumulate at a junction, means इकट्ठे नहीं होते हैं. The number of charges that arrive at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with conservation of charges. means जितने के junction पे आएंगे charges उतने ही वहाँ से चले जाएंगे उस सेम टाइम में. Now next topic, Kirchhoff's second law or Kirchhoff's voltage law or KVL. It is also called loop theorem or loop rule. According to Kirchhoff's second law or KVL, the algebraic sum of change in potential, that means delta V, the algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0.
okay, around a closed loop is 0. This law is applicable only for closed loop and related to potential change in potential. For potential gain we take positive V, and for potential drop we take a negative V. Okay, let's take a one closed loop A B C D, A B C D. ओके, यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है, टू रजिस्टर्स, एंड दिस इज clockwise path. Okay, we take loop A B C D A. अब A से स्टार्ट हुआ, A पे एंड हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? VA माइनस VA. ओके, VA माइनस VA दैट इज़ ज़ीरो. तो KVL यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर हम ABCDA अगर हम एक क्लोज लूप ले रहे हैं और वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा. VA माइनस VA इज़ ज़ीरो. दिस इज़ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इनको कैसे अप्लाई करना है किसी नेटवर्क में वो देखते हैं. ठीक है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. Now next topic, how to apply Kirchhoff's law. Okay, there are some steps which can follow. First, draw current from one or more cells. जितने सेल उसमें कनेक्टेड हैं सर्किट में, उनमें जितने भी करंट हैं उन करंट को ड्रॉ करना होगा. एंड फॉलो किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. और उसमें करंट किरचॉफ्स करंट लॉ को फॉलो करना होगा जब भी हम करंट को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सर्किट में देखते हैं कैसे. लेट टेक वन जंक्शन, ये जंक्शन है, यहाँ पे आई करंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे जंक्शन से जब जितना आएगा उतना जाएगा भी, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, I1 आ रहा है और I2 और I3 क्या है? जा रहे हैं इस जंक्शन से दूर. That means I is equal to I1 plus I2 according to Kirchhoff's current law. और we can take स्टेप से ले सकते हैं. I आ रहा है, इधर I1 गया, तो यहाँ कितना रह जाएगा? I माइनस I1. Okay, and we can write by using KCL. I is equal to I1 plus I minus I1. By solving we get I is equal to I. Okay, and second step, choosing a loop. Okay, and loop should be closed loop. हम उस सर्किट में लूप्स चूज़ करेंगे और वो जो लूप होने चाहिए वो क्लोज्ड होने चाहिए. ओके, लूप शुड बी क्लोज्ड लूप्स एंड कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स. उस लूप में कितने भी सेल्स, रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स होते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, एंड थर्ड स्टेप, डायरेक्शन ऑफ लूप. ये कंसीडर हमको करना पड़ेगा, और पाथ, डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ. क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं किसी लूप में, और एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं. क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं पाथ को, और एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. और एक ही क्वेश्चन में अलग अलग लूप में हम कुछ को क्लॉकवाइज कुछ को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक न्यूमेरिकल है तो उसमें सारे लूप्स में सेम डायरेक्शन में या सेम पाथ हमको कंसीडर करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, वो सॉल्व हो जाता है. एंड फोर्थ स्टेप, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन. पोटेंशियल ड्रॉप कब लेना है, पोटेंशियल गेन कब लेना है. ओके, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन अ सर्किट. अगर हमारा पाथ ऐसा है कि हम हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. ओके, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, अगर हमारा पाथ ऐसा है तो हमारा जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा. ओके, चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा. ओके, चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप. एंड इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम lower potential to higher potential, lower potential to higher potential, that means
नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, और जो पाथ है हमारा वो स्टेप से है, ठीक है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इन दिस केस change in potential is positive, change in potential is positive, and this is case for potential gain. ओके, अब सेल्स में देखते हैं. ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये हमारा पाथ है. ओके, तो इस केस में हमारा चेंज इन पोटेंशियल क्या लेंगे, नेगेटिव. और सेकंड केस, अगर हमारा हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और हमारा जो पाथ है, पाथ की डायरेक्शन हमने बदल दी, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल क्या लेंगे हम, पॉजिटिव. तो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कौन सा पाथ आपने कंसिडर किया है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ रजिस्टर्स. अब रजिस्टर्स के केस में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है रजिस्टर में, ठीक है. करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है रजिस्टर्स में भी. तो अगर हमारा एक रजिस्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल. अगर हम पाथ भी ऐसा ही कंसिडर कर लेते हैं, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लेंगे इस कंडीशन में, माइनस आई आर. ओके, और इसी कंडीशन में अगर मैं, डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है, मान लो यही है हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और करंट की डायरेक्शन ये है. अगर हम पाथ चेंज कर दें, पाथ मीन्स लोअर टू हायर पोटेंशियल हमारा हो जाए पाथ, तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा क्या लेंगे इस केस में, अक्रॉस द रजिस्टर प्लस आई आर. ओके, दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू किरचॉफ्स करंट लॉ. लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ. एक सर्किट लेते हैं. ओके, A B C D. Here E1 and E2 are two cells having EMF E1 and E2 and generate current I1 and I2. ओके, यहाँ पे I1 करंट भी जनरेट, ऊपर वाला जो हमारा ये E है E1, ये करंट जनरेट करेगा I1. अब यहाँ पे हमने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई किया, तो उससे क्या होगा, हर जितनी भी आर्म्स हैं उस आर्म्स में करंट की हमें वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ से I2 करंट जा रहा है, ऊपर से I1 करंट आ रहा है, तो इस वाली आर्म में कितना करंट हो जाएगा, I1 प्लस I2. बिकॉज जब यहाँ पर फिर जंक्शन आ गया, और जंक्शन पे क्या होगा, फिर से किरचॉफ करंट लॉ एप्लीकेबल होगा. तो इस जंक्शन पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट आ रहा है, ऊपर कितना चले जाएगा I1, और इस वाली आर्म में कितना जाएगा I2. इस टाइप से हमको हर आर्म में करंट की वैल्यू मालूम चल जाएगी. रजिस्टर्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, EMFs की वैल्यू हमको पता है E1 E2. अब क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप, कोई फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर दिया, KCL अप्लाई कर दिया. सेकंड स्टेप हमें क्या है, लूप कंसीडर करने हैं. हमने लूप कंसीडर कर लिए, एक लूप ले लिया हमने ABCA, एंड सेकंड लूप ले लिया हमने AC, ये वाला लूप, ठीक है, ACDA. सेकंड स्टेप भी हो गया. थर्ड स्टेप क्या करना है हमको, डायरेक्शन ऑफ पाथ. डायरेक्शन ऑफ पाथ हमें कंसीडर करनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं. तो हमने फर्स्ट लूप में क्या ले लिया, क्लॉकवाइज, और सेकंड लूप में भी हमने क्लॉकवाइज ले लिया. आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी भी लूप में डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ पाथ कैसे भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज. तो हमने दोनों ही कंडीशन में क्लॉकवाइज ले लिया. अब नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप ABCA. ABCA में अप्लाई करते हैं, यह है ABCA, इसको अलग से बना लिया, ड्रॉ कर लिया. ABCA में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, E1 क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन दिस केस. तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है हमारा, E1 पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल. देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं ना, ठीक है, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप इज पोटेंशियल गेन होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव ले लिया. उसके बाद क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये करंट कैसा फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस I1 R1. यहाँ पे कोई रजिस्टर है नहीं. अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखते हैं तो हमारे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो करंट जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस
यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन हो गई लूप इक्वेशन फॉर लूप ABCA। अब सिमिलरली हम फॉर लूप ACDA में KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्शन किया है, डायरेक्शन ऑफ पाथ हम यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, क्लॉकवाइज लिया है। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, दैट इज़ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो E2 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मीन्स माइनस E2। ओके, हमारी जो डायरेक्शन है पाथ की उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे पोटेंशियल, दैट मीन्स I1 प्लस I2 इंटू R2 एंड प्लस बिकॉज यहाँ पे इस वाली आर में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I2, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, प्लस I2 I3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस टाइप से और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। एंड रिमेंबर वन पॉइंट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट मीन्स KVL सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे करता है, विद द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज वी राइट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इफ फॉर अ लूप डेल्टा V is 0, then W by Q is equal to 0, that means W is equal to 0, okay, for a closed loop। तो ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।